السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاعرہ باقاعدہ طور پر آغاز ہونا چاہتا ہے۔ میں سب سے پہلے اس مشاعرے کے صدر محترم مقام جناب سید امین صاحب سے التماس کرتا ہوں شہنشین پر جناب فروز کو، اور اس مشاعرے کے ایک مہمان خصوصی محترم مقام جناب اسماعیل فروز صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ ریاض پر تشریف لائیں، اور ہمارے ایک معتبر شخصیت جو اس مشاعرے کے اعزازی مہمان ہیں، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ ان کا نام، ایک بہت معتبر شخصیت جن کا نام ظہیر دانش کے نام سے ادبی دنیا پہچانی جاتی ہے، ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ ریاض پر تشریف لائیں۔ آغاز مشاعرہ اس خالق مطلق کے نام جس کی ثنا خوانی کر کے تجلیاں اپنا سفر شروع کرتی ہیں۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ مولا، میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زبان پہ تیری ثنا نہیں ہوتی۔ تلاوت کلام پاک سے مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت سخن دوں گا قاری شیخ مبارک صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، صدق الله العظيم۔ زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، چلو نعت نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے، چلو نعت نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے۔ بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے۔ زکریا صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ نعت شریف سے ہمیں محظوظ فرمائے، بہترین آواز کے مالک۔ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی، وہ ہاشمی مکی مدنی النبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی
محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ نبی کے ذکر سے مدحت میں چاشنی آئی، زبان مہکی بصیرت میں تازگی آئی، زبان مہکی بصیرت میں تازگی آئی، مثال ان کی نہ دنیا میں ہے نہ عقبہ میں، مثال ان کی نہ دنیا میں ہے نہ عقبہ میں، سلام آیا خدا سے کبھی وہی آئی، سلام آیا خدا سے کبھی وہی آئی۔ آئیے ان چار مصروں کے ساتھ میں ایک اور شخص کو نعت شریف کے لیے دعوت حکم دے رہا ہوں۔ ایک میرے دوست محب یونس طیب صاحب، ان کی زبان سے نعت نہ نکلے اور ہم لوگ نعت نہ سنے اور محفل شروع ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں التماس کرتا ہوں یونس طیب صاحب سے کہ وہ اپنے لہن داؤدی سے بہترین نعت سے ہمیں نوازیں۔ نعت شریف سننے کے لیے ہم لوگ بے چین ہیں، ان کی آواز سننے کے لیے۔ کیجئے مدحت سرکار دعا سے پہلے، کیجئے مدحت سرکار دعا سے پہلے، کیجئے مدحت سرکار دعا سے پہلے، ختم ہو جاتے ہیں امراض دوا سے پہلے، ختم ہو جاتے ہیں امراض دوا سے پہلے، کیجئے مدحت سرکار دعا سے پہلے، کیجئے مدحت سرکار دعا سے پہلے، ختم ہو جاتے ہیں امراض دوا سے پہلے، ختم ہو جاتے ہیں امراض دوا سے پہلے، میرے اشکوں سے میری روح وضو کرتی ہے، میرے اشکوں سے میری روح وضو کرتی ہے، میرے اشکوں سے میری روح وضو کرتی ہے، خوب رو لیتا ہوں آقا کی ثنا سے پہلے، خوب رو لیتا ہوں آقا کی ثنا سے پہلے، میرے اشکوں سے میری روح وضو کرتی ہے، میرے اشکوں سے میری روح وضو کرتی ہے، خوب رو لیتا ہوں آقا کی ثنا سے پہلے، خوب رو لیتا ہوں آقا کی ثنا سے پہلے، عشق کو قوت پرواز عطا کر یا رب، عشق کو قوت پرواز عطا کر یا رب،
عشق کو قوت پرواز عطا کر یا رب، عشق کو قوت پرواز عطا کر یا رب، میں چلے جاؤں مدینے کو ہوا سے چلے جاؤں مدینے کو ہوا سے پہلے، عشق کو قوت پرواز عطا کر یا رب، عشق کو قوت پرواز عطا کر یا رب، چلے جاؤں مدینے کو ہوا سے پہلے، چلے جاؤں مدینے کو ہوا سے پہلے، ختم ہو جاتے ہیں امراض دوا سے پہلے، بدعت سرور کونین کے صدقے طیب، بدعت سرور کونین کے صدقے طیب، بدعت سرور کونین کے صدقے طیب، نور ہاتھوں میں اتر آئے دعا سے پہلے، نور ہاتھوں میں اتر آئے دعا سے پہلے، ختم ہو جاتے ہیں امراض دوا سے پہلے۔ یہ ایک تو لہر داؤدی، اس پر اشعار کی بھرمار، تصورات، خیالات، عقیدت، عشق، جذبات، یہ ساری چیزیں اشعار میں جب ٹھہر جاتے ہیں اور اسے ایک آہنگ مل جاتا ہے تو شعر کا یہ مرتبہ ہوتا ہے۔ آئیے بات بنتے نہیں بنا لیتے ہیں، بات بنتے نہیں بنا لیتے ہیں، نام لے کے تیرا محفل کو سجا لیتے ہیں، نام لے کے تیرا محفل کو سجا لیتے ہیں، لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا تیری ہم نعت بنا لیتے ہیں، آقا تیری ہم نعت سنا لیتے ہیں۔ آئیے ایک اور نعت کے لیے میں دعوت سخن دوں گا۔ ایک بہترین آواز کے مالک میری مراد شفیع اللہ ہیں، جن کی آواز ان دنوں میڈیا میں گونج رہی ہے۔ شفیع اللہ شفیع سے التماس کروں گا کہ وہ ایک نعت ہمیں نعت سے محظوظ ہو۔ شفیع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر امام قاسم ساقی صاحب کی یہ ایک نعت ملاحظہ فرمائے۔ ازل سے مصطفیٰ کا نام لکھتا ہے قلم میرا، ازل سے مصطفیٰ کا نام لکھتا ہے قلم میرا، نبی کے ذکر میں مشغول رہتا ہے قلم میرا، نبی کے ذکر میں مشغول رہتا ہے قلم میرا، وہ منظر گنبد خضرا کا پل میں کھینچ دیتا ہے، وہ منظر گنبد خضرا کا پل میں کھینچ دیتا ہے، مدینے کے تصور میں جو رہتا ہے قلم میرا، مدینے کے تصور میں جو رہتا ہے قلم میرا،
صفے قرطاس پر سجدے میں رہتا ہے قلم میرا، صفے قرطاس پر سجدے میں رہتا ہے قلم میرا، ازل سے مصطفیٰ کا نام لکھتا ہے قلم میرا، نبی کے ذکر میں مشغول رہتا ہے قلم میرا، یقیناً نام احمد سے حقیقی لطف ملتا ہے، یقیناً نام احمد سے حقیقی لطف ملتا ہے، اسی نسبت سے سر اپنا جھکاتا ہے قلم میرا، اسی نسبت سے سر اپنا جھکاتا ہے قلم میرا، نبی کا نام جب لیتا ہوں میں فرد عقیدت سے، نبی کا نام جب لیتا ہوں میں فرد عقیدت سے، تو سجدہ ریز ہو جاتا ہے ساقی قلم میرا، تو سجدہ ریز ہو جاتا ہے ساقی قلم میرا، ازل سے مصطفیٰ کا نام لکھتا ہے قلم میرا، ازل سے مصطفیٰ کا نام لکھتا ہے قلم میرا، نبی کے ذکر میں مشغول رہتا ہے قلم میرا، اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں جو پچھلے 2 دہائیوں سے اردو ادب کی خدمت میں لگا ہوا ہے، درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہا ہے، جن کے زیر نگرانی کئی طلباء و طالبات PhD کی سند حاصل کر چکے ہیں، ایک افغانی شخصیت جو اپنی زندگی کا ایک اہم مقصد اردو کی خدمت بنا لیا ہے، ایسی شخصیت کا نام سید امین اللہ حبیب صدر محترم ہے۔ اس مشاعرے کے صدر سے التماس کرتا ہوں کہ وہ صدارتی کلمات سے ہم لوگوں کو محسوس کر رہے ہیں۔ محترم المقام جناب سید امین اللہ حبیب صاحب سے التماس کرتا ہوں۔ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہمانان خصوصی جناب اسماعیل فوز صاحب اور جناب ظہیر خان صاحب اور اس بزم ساقی سخن کے بانی ڈاکٹر امام قاسم صاحب اور معزز حضرات شریف ہیں اور طلبا اس کا سب سے پہلے بہت مشکور و ممنون ہوں ساقی صاحب کا
जिन्होंने इस मुशायरे में मुझे सदारती फराइज अंजाम देने का मौका दिया और साथ साथ मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस राजनीति के शहर में और अपने घर में बज़्म साफ़िए सुख़न का एहतमाम किया, क्योंकि मामूली बात नहीं है, ये एक मुजाहिद रूही नहीं कर सकता। जिस मोहब्बत और जुलूस के साथ वो मेहमानान को मदू करते हैं और उनका ख्याल करते हैं और हर छोटी बात पर उनका ख्याल करते हैं, कि ये वाकई काबिल सताइश है, काबिल तहसीन। इस मौके पर मैं एक बात की तरफ इशारा करना चाहूँगा, वो ये कि मुशायरे का नाम जब भी आता है तो हम तफरीक और तफन्नुन तबाह तक महदूद करके उसे गैर संजीदगी से लेते हैं, जबकि वाक़या ऐसा हरगिज़ नहीं है। मौलाना अल्ताफ हुसैन खाली ने अपनी किताब मुक़द्दमे शेर व शायरी में शायरी की इफादियत पर बहुत लंबी बहस की। शायरी का रुतबा क्या है, शायरी की इज्जत कैसी होनी चाहिए, इसका जिक्र करते हुए उन्होंने अरब के दौर में, बिलखुसूस जाहिली दौर में किस तरह से अरबी शायरी की पजीराई होती थी, उसका बहुत खूबसूरत अंदाज में किया। उसका जिक्र करते हुए जाहिली दौर के शोरा, नाबिगा, आशा, इमराउल फैज वगैरह का जिक्र किया है और उनकी शायरी से जिस तरह की बेदारी उन्होंने अरब में पैदा की थी, उसका जिक्र भी किया। और मैं चाहता हूं कि हम मुशायरों में शेर सुनने के बाद सिर्फ वाह तक हम महदूद न रहें। वैसे भी वाह की आवाज ऐसी होती है कि दिल के तमाम हरास को जो है वो बस खत्म हो जाती है, जबकि हमें जरूरी है कि शेर सुनने के बाद उस पर गौर फिक्र करें। अभी आपने सुना कि इमाम फासी साहब की एक नात शरीफ, जिस पर आप जरा गौर करें तो आप महसूस कर सकते हैं कि कलम को लेकर और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिक्र, उनकी नामखानी और उनकी सनाखानी को लेकर किस खूबसूरती से अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। क्या क्रिएटिविटी को जो है हम देख सकते हैं, ये क्रिएटिविटी को हम महसूस भी कर रहे हैं। महसूस कर रहे हैं से मुराद ये कि हमारे अंदर भी एक शायर मौजूद है। जब तक हमारे अंदर शायर मौजूद नहीं होता, हम किसी की शेर पर दाद नहीं दे सकते। वाकई हमारे अंदर शायर जरूर मौजूद होता है। तो ये जरूरी है कि हम जब शेर पढ़ते हैं, जब कोई शेर पढ़ता है या फिर हम शेर पढ़ते हैं, शेर सुनते हैं, तो जरूरी है कि जो है उसकी तख्लीकी सलाहियतों पर जो है हमें ध्यान देना चाहिए। और तख्लीकी सलाहियतों पर ही जो है तहकीक होती है और तहकीक से ही इल्म में इजाफा होता है। अदब में तहकीक जो होती है वो तख्लीक पर होती है, जो तख्लीकात होती है उस तख्लीकात पर होती है। तो तख्लीक पर जब तहकीक होती है, जब तहकीक से ही इल्म में इजाफा होता है, वरना इल्म जो है मुझे भी हो जाता है। और अगर किसी इल्म में तहकीक नहीं है तो वो इल्म रुक जाता है। हम देख सकते हैं कि जो कई ऐसे उलूम है जिन पर जब तहकीक नहीं होती है तो वो इल्म जो है आहिस्ता 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 जो है समाज से खत्म हो जाता है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हम शेर को सिर्फ बाहर तक या आह तक महदूद न करें, बल्कि जो है उसे अपने ज़हन दिल में बिठाएं और उस पर थोड़ा गौर करें। सबसे पहले शायर की तख्लीकी सलाहियतों पर गौर करें और शायर कैसे क्या कहना चाहता है। और शायर यही जो है शेर नहीं कहता, तो
उस शेर के पीछे उसका तजुर्बा, उसकी फिक्र, उसकी गौर, उसका मुताला, बहुत कुछ जो है कारनामा होता है। तो मेरी मुराद यही है कि जितने भी सामीन यहाँ मौजूद है, सिर्फ हमें आह या वाह तक हमें दाद देकर जो है खामोश नहीं रहना है, बल्कि शेर पर तवज्जो करना जरूरी है। इसका जिक्र सिर्फ ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये उलमा बहुत सारे नाज़रीन और जिनमें खास तौर पर मैं अल्ताफ हुसैन नारी का जिक्र कर रहा हूँ कि उन्होंने इसे साबित किया। तो कई हवालों से जो उन्होंने अपने में शेर शायरी में जो साबित किया। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं मुकम्मल नहीं होना चाहता, क्योंकि बड़ी अच्छी शेरी महफिल जो है वसी हुई है, तो इसका एहतमाम इसको जो है जारी रखते हुए मैं हमारे इमाम कासिम साहब को फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बस में साथी सुकून की एवज में जितने भी जो है कारनामे, जितने भी जो है मजलिसें, जितने भी इंटरव्यूज और मुशायरे हो रहे हैं, इसके प्रोसेस से जो है उनकी ज़िंदगी में, उनकी माल में, उनकी बरकत में, उनकी इज्जत में जो है मज़ीद इजाफा हो। बस इन्हीं बात के साथ मैं बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। बहुत बेहतरीन अंदाज से आपने तारीख का हवाला देकर एक अच्छे और सच्चे शायर की शनासाई की। मैं इसके लिए मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। और हमारे दरमियान एक अच्छे नस्लदार जो किताबों के मुताले के आदी हैं, जब भी कोई नई किताब निकलती है तो उसका पता हमें ज़हीर दानिश साहब के घर से मिलता है, उनके मीडिया से मिलता है। कहते हैं कि साथी साहब आज मैंने ये नई किताब मंगवाई है, इस किताब की खुसूसियत ये है, इस किताब के लिखने वाले की खुसूसियत ये है। इनकी खुसूसियत ये है कि ये जब मुताला करते हैं तो बहुत सोच गोई के साथ बहुत कम वक्त में किताब का मुताला कर लेते हैं और किताब की खूबियों को पहचान जाते हैं। और एक अच्छे सहाफ़ी में बचपन से सहाफ़त में लगे हुए हैं और एक ऐसी शख्सियत जिनको उर्दू, अरबी, फारसी पर कमा और एक ऐसी शख्सियत हम लोग उर्दू में PhD करने से बहुत परेशान हो जाते हैं। ये शख्स फारसी में PhD किया, इसके लिए मैं जरूर खालिद से उनका इस्तेमाल करूँगा। मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़हीर दानिश साहब जो फारसी, अरबी और उर्दू पर कमा रखते हैं, एक आमिल है, एक आलिम है, आमिल भी है, आलिम भी है और उमरी भी है। मैं इनसे इल्तिमास करूँगा कि इस महफिल में अपने तासुरात पेश करें। मोहतरम जनाब ज़हीर दानिश साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि डॉक्टर इमाम कासिम साहब मुसलसल अदबी महफिलें और मजलिसें बर्पा कर रहे हैं। कोई काम मुसलसल करना बहुत मुश्किल होता है। साल में एक बार कोई एक नशिस्त कर देना, 2 साल में कर देना, ये बहुत आसान है। लेकिन मुसलसल महीने में 1 या 2 मरतबा जब भी मौका मिले नशिस्त मुनक़िद करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये कि साथी साहब की ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जिसके अंदर कोई सलाहियत देते हैं तो उसे आगे बढ़ाने के लिए उसकी हिम्मत अफजाई करते हैं। हिम्मत अफजाई करना ये बहुत ऐसा काम है कि यहाँ पर तकरीबन असातिज़ा बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि आप भी किसी बच्चे के अंदर कोई सलाहियत देते हैं तो उसकी हिम्मत बढ़ाएं। अगरचे कि वो गलत लिखा होगा, लेकिन उसकी हिम्मत बढ़ाइए, हिम्मत अफजाई कीजिए। बहुत बड़ा साइंटिस्ट, एक मरतबा बहुत गरीब खानदान से ताल्लुक़ था उसका नाम बोल रहा हूँ मैं। एक मरतबा वो उसका उस्ताद है ना, उसे खत लिख के देता है कि अपनी अम्मा को देना। हाँ, उसकी माँ को खत लिखता है तो खत में क्या लिखता है, ये बच्चा पढ़ने के लायक नहीं है, इसको पढ़ना आता है, कुछ नहीं आता, बेवकूफ़ है, बेकार पैसों में लिख देता है। इसके भी क्या बोलती है, बेटा ये स्कूल जो है आपके अंदर इतनी ज़्यादा सलाहियत है कि छोटा स्कूल वो सलाहियत नहीं उठा सकता, इसलिए शहर का स्कूल चाहिए वो सलाहियत को बर्दाश्त करने के लिए। बड़े स्कूल आप पढ़ना है, छोटे स्कूल आप। तो हिम्मत अफजाई के जरिए ही नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं। हमारे बहुत से असातिज़ा क्या करते हैं,
बच्चों को हिम्मत तोड़ दे रहे हैं, अरे तू किसी काम कर रहे, तू पढ़ ही नहीं सकता, तू लिख नहीं सकता, तू सबसे बेकार नहीं। सबसे बेकार बोलने का हक हमारे को नहीं है। क्यों नहीं है? बच्चा जब माँ के पेट में पैदा हुआ, माँ के पेट से बाहर निकला, तो साइंटिस्ट साइंस का इल्म रखने वाले जानते हैं बहुत से ग्राजुएट से लड़के उन्हें आगे बढ़ता, जो वहां से उन्हें जीत के निकला तो आपको कुछ भी नहीं कर सकता, तू हार गया, ऐसा बोलने वाले हम तो हमारे को इस बात का हक हासिल नहीं है। चाइना में और जापान में जो बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ देखिए बच्चों की तरबियत के ऊपर वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों की तरबियत पे बहुत काम कर रहे हैं। और हम लोग बच्चों की तरबियत पे काम बिल्कुल नहीं करें। हम अपने अल्फाज के जरिए हिम्मत तोड़कर बच्चों को खत्म कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल में क्या कर रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं लोग। जो बच्चा पहली क्लास में मुख्तलिफ सवाल करता है, उस्ताद जी ये क्या है, हजरत ये क्या है, वो क्या, ऐसा सवाल करता है, लेकिन 10th में जाने के बाद वो बच्चा सवाल नहीं करता। तो इस दरमियान कुछ ऐसा भयानक हुआ है जिसने उस बच्चे की सलाहियतों को बदल कर दिया, उस बच्चे को खत्म कर दिया। सब हुआ इसके बीच में। तो बच्चे के अंदर जरा भी सलाहियत देखें तो उसकी हिम्मत अफजाई करें, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कोई भी माँ के पेट से कोई भी सीख कर नहीं आता, बाहर आने के बाद ही किसी क्या होगा, बाहर आने के बाद ही सीखे। तो हमें चाहिए कि बच्चों की हिम्मत अफजाई करें। तीसरी बात यह है कि हम लोग अदब को मजबूती से पकड़े हुए हैं, गजल लिखने में, शायरी करने में। हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये 4-5 लोग आए क्या पढ़ते हैं, शायरी को पढ़ता गाली वगैरह ऐसा सोच लेते तो क्या आज तक उनका नाम बाकी रहता। मौलाना आजाद की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मौलाना आजाद कहते हैं कि आप किसी एक फील्ड को इख्तियार कर लीजिए, एक फील्ड को चुन लीजिए और आंख बंद करके उसमें मेहनत करते चले जाइए। और ये मत देखिए कि कोई तारीफ कर रहा है, कोई तारीफ नहीं कर रहा, कोई वाह वाह बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, नहीं दिखेगी। बल्कि आप मुसलसल एक फील्ड को पकड़िए, जैसे शायरी है, जैसे नस्र निगारी है, जैसे तनकीद है, एक चीज से पकड़िए और उसमें मुसलसल मेहनत करते रहिए, मुसलसल मेहनत करते रहिए। ये एक वक्त आएगा सारी दुनिया खड़े होकर आपको सलाम करेगी, एक वक्त जरूर आएगा। हमारे इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, इब्न कसीर जब वो लिखे कोई भी नहीं जानता था, उनके इंतखा तक कोई नहीं जानता था। पूरा खुलूस के साथ, पूरी लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह के लिए खालिस तौर पर पूरी मेहनत करके इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, इब्न कसीर लिखे तफसीर इब्न कसीर। उनके इंतकाल के बाद दुनिया पहचानी कितनी अजीम तफसीर लिखी, कितनी बड़ी किताब लिखे गए उनके इंतकाल के बाद। जरूरी नहीं कि आप जिंदा रहते हुए सब लोग आपकी तारीफ करें, सब लोग आपकी कदर करें, क्योंकि हमारे माशरे में धीरे धीरे की कदर करने वाले लोगों की कमी है। कोई आदमी आपकी तारीफ नहीं कर रहा तो बिल्कुल मायूस नहीं होना कि भाई ये तारीफ करानी, जरूरत क्या है किसी की तारीफ करने की? हाँ, किसी को पहचानने की, किसी की शनाख्त की जरूरत क्या है हमारे को? अगर हम समझते हैं कि ये काम अच्छा है, ये काम सही है, तो पूरी मेहनत के साथ उसको जाना चाहिए। और एक बात, एक आखिरी बात बोलकर मैं आपसे जवाब दूंगा। तो बात ये है कि कोई आदमी अगर हमारे को बुरा भरा बोलता है और हमारी हिम्मत तोड़ता है तो हम मायूस हो जाते हैं। अरे ये ऐसा बोल दिए, फलां ऐसा बोला, ऐसा बोलते हम लोग मायूस हो जाते। नहीं होना चाहिए। कई मेरी उम्र है 35 साल, 40 साल। मैं अपने साथ कितने साल से हूँ? 40 साल से हूँ मैं अपने साथ। तो आप 5 मिनट देखिए मेरे को, इन्हें ऐसा बेवकूफ है, इन्हें कभी ना ऐसा उन्हें बोल दिए, 5 मिनट ही देखे सो। तो मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ। 40 साल से मैं अपने साथ हूँ, मैं अपने बारे में मालूम नहीं कैसा हूँ। बोलो कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कोई भी अगर हिम्मत तोड़ता, गाली देता, कुछ भी बोलता, डोंट केयर मत करो, आगे बढ़ते रहो। अल्लाह ताला जरूर आपको कामयाब करेगा। दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा हम सब अमल करने को जो अपने आप को, जो मेरे शायरी के खास है और अच्छे मेहनती शख्स है, वो भी 2 मिनट, सिर्फ आपको 2 मिनट लेना चाहते हैं। मेरी मुराद फिरोज साहब है, ये बहुत बेहतरीन उस्ताद हैं, उर्दू की खिदमत में आगे बढ़ रहे हैं। फिरोज साहब मेरे पुराने शायर हैं, मैं इनसे इल्तिमास करता हूं सिर्फ 2 मिनट अपनी बात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यहाँ पर अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र, मैं यहाँ पर समझा भी नहीं था कि अल्लाह ताला यहाँ पर हमको खड़ा कर दिया। ये वाकई अल्लाह का फजल है। यहाँ पर जितने हजरात हैं
जितने सामीन हैं उन सब क्या है ऑलमोस्ट मेरे उस्ताद हैं। मैं इनके सामने बात करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन जो मेरे दिल के अंदर जो खासियत है, जहन के अंदर जो चल रहा है, आप जैसे बड़े लोगों के सामने इसको पेश करना समझा। मैं मुशायरे में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ और उसके साथ साथ उनकी खिदमत भी करता हूँ। यहाँ पर मैं अभी बड़े बड़े लोगों के स्पीच सुने हैं। ये हमारे उस्ताद हैं उर्दू के, ये साफ़ी साहब जो है ये हमारे इंग्लिश के उस्ताद हैं, और जो है यहाँ पर इस्माइल साहब हैं ये भी हमारे उस्ताद हैं, और जो कड़बे से जो आए हैं वो भी हमारे उस्ताद हैं, सत्तार फैजी साहब। एक ही बात में बात करके इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लूँगा। जितने यहाँ पर उस्तादें बैठ कर हैं, अभी अभी डॉक्टर साहब से हमने सुना है कि उस्ताद कभी भी बच्चों का हौसला कम नहीं करना चाहिए, हौसले को बढ़ाना चाहिए। इस लिहाज से कि ये एक काम जो है उर्दू के जितने हम जानने वाले हैं, जितने इसके ऊपर मेहनत हो रही है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में और 2009 इस दरमियान में मैं जूनियर लेक्चरर का जो अपॉइंटमेंट मिला है, उस वक्त से अब तक मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे उस्ताद हैं, मेरे स्टूडेंट्स तकरीबन 15,000 स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पर हैं। उनमें तकरीबन टीचर्स मैंने डाइट का मैंने उनको कोचिंग किया है। बहुत सारे क्या है उस्ताद अभी टीचर्स बनकर मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। उसके बाद मैं ये सोचा कि हमारी कौम के अंदर इल्म की बहुत बड़ी कमी है तो सब कुछ है, लेकिन इल्म की बहुत बड़ी कमी है। इसके ऊपर एक नज़र डालना चाहिए कि हमारी कौम के अंदर ऐसे बच्चों की कमी है, ऐसे स्टूडेंट्स की कमी है कि हर कौम के अंदर हमारा बच्चा मौजूद हो। हर कौम के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर, एनी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारा बच्चा मौजूद हो, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। इस लाइन से मैं क्या मेहनत किया, एमसेट के बच्चों को कोचिंग दिया, नीट के बच्चों को कोचिंग दिया। तकरीबन 50 पर 3 बच्चे आए थे। ऑलमोस्ट 48 मेंबर्स, 23 मेंबर्स इंजीनियरिंग में चले गए और बच्चे बल्कि के 20 मेंबर क्या है बीएससी नर्सिंग के और नीट के लिए गए। ये मेरी गुजारिश है, आजिज़ाना गुजारिश है, आप जैसे बड़े लोग क्या है इसके ऊपर जरा नजर डालें, क्योंकि आईएएस की फीसद क्या है हमारे कौम की, आईएएस की फीसद क्या है, आईपीएस की फीसद क्या है। हमको दीन दुनिया दो चाहिए, है ना। अल्लाह ताला तो यही फरमाते हैं, रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतों की आखिरत हसनतों की अज़ाबना, है नहीं मेरे भाई। माफ करें, हमारे उस्ताद यहाँ पर हैं, जो मेरे दिल की ख्वाहिश है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारा शख्स हो, कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर हो, हेल्थ डिपार्टमेंट। आज देखिए कि औरतों को क्या हाल यहाँ पर रायचूरी के अंदर क्या हाल गुजरती है, ये पूरा हमको पता है। आज औरतें क्या है डिलीवरी के लिए गएंगे तो गैर कौन रहेगा, कोई हमारा आदमी नहीं मौजूद। अभी अभी अल्लाह का फजल 2-3 यहाँ पर मौजूद है। अभी अभी क्या है महाराष्ट्र से, कर्नाटक से आईएएस ऑफिसर्स निकल गए। मेरी ख्वाहिश है कि आंध्रा से भी निकले। इंशाअल्लाह आप इस बात पर डॉक्टर साहब से, यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, आप कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मैं लगातार क्या है 12 साल से मेहनत हो रही है मेरी, कई स्टूडेंट्स मेरे बने हैं। मैं कभी भी स्टूडेंट्स की मेरी तारीफ नहीं है, जो मैं करता हूँ वो आपके सामने सुनाता हूँ। यहाँ तो बहुत बड़े क्या उस्तादान बैठ के, अब हर एक उस्ताद में क्या है ये मौका सिर्फ क्या है उस्ताद को मिलता है। बच्चों को बनाने का मौका सिर्फ उस्ताद को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है मौका।
सो ये जो चंद अल्फाज मेरे हैं और मेरी मेहनत भी है, और जहाँ भी हो हमारे उस्ताद हमको इशारा करेंगे, हम काम करेंगे। और इस मौका दिए हुए मुझको मैं आप सबका और हमारे उस्ताद साहब की सहायता में बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मुशायरा शुरू होने ही वाला है। अब इस मुशायरे की शुरुआत से पहले एक छोटी सी रस्म दाखिल रह गई है। हमेशा हमारे रस्म की जानिब से एक अवार्ड से नवाजा जाता है। इस बार हमारी कमेटी और कमेटी के जो मेंबरान साहिबान हैं, मौलाना सुभान साहब हो, मौलाना मुरी साहब हो, अब्दुल्ला मुरी साहब हो, सारे लोगों ने ये तय किया है इस बार जो है फ़ख्र उर्दू का अवार्ड डॉक्टर अमीनुल्लाह अमीन साहब को दिया जाएगा। और मैं एक मोमेंटो और उनकी शानोशी के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा मकाम जनाब सरदार फैजी साहब और अब्दुल्ला अमीन साहब, सुभान साहब, फरहान साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और मकाम जनाब अमीनुल्लाह अमीन साहब को एक मोमेंटो से नवाजे और शानोशी। और अब नाज़िर मुशायरा मकाम जनाब रहमतुल्लाह उनके साहब के हवाले में करते हैं। मेहमानान ख़ुसूसी बाज़ाओ सामीन हज़रात, आज का ये मुशायरा जिसकी निज़ामत की जिम्मेदारी 15वां मुशायरा है, इसकी निज़ामत की जिम्मेदारी खाक पर डाल दी गई है। और मैं बड़े मरतबा आपके सामने निज़ामत की जो है फ़राइज़ अंजाम देने जो है बैठा हूँ। वैसे इकबाल का शेर है, आईने जवां मर्दा, आईने जवां मर्दा, हक़ गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को नहीं रूवाही। पहला वाला जिससे मुझे हिम्मत मिली। दूसरा शेर है आतिश का मुहिम्मा से जवां, का मुहिम्मा से जवां मर्द अगर लेता है, मुहिम्मा से जवां मर्द अगर लेता है, सबको मार के गंदी नजर लेता है, का मुहिम्मा से जवां। सबसे पहले आज के मुशायरे का आगाज हमारे मुहतरम बड़े भाई जनाब सत्तार फैज साहब बरदस्ता लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। ये शख्सियत की जो है मैं आपके सामने दावत सुपन देने जा रहा हूँ, बड़े अदब के साथ कि आप तशरीफ लाएं और अपने जो है कलाम से सामईन को महसूस फरमाएं। आइए आपकी खिदमत में गजल पेश करने जा रहा हूँ। दर्द बढ़ता गया छुपाने से, दर्द बढ़ता गया छुपाने से, वज़्न हल्का हुआ बताने से, वज़्न हल्का हुआ बताने से। सिस्कियाँ लेने से बेहतर है हमारा गम जो है किसी दोस्त को या फिर घर में किसी को सुना ले तो हल्का हो जाता है। आइए रोज और शब दिल में रात दुखाने से, क्या मिला आपको रुलाने से, रोज और शब दिल में रात दुखाने से, क्या मिला आपको रुलाने से। प्यार की तुम हंसी दुनिया
प्यार की तुम हसीन दुनिया हो, लेना देना नहीं जमाने से, लेना देना नहीं जमाने से। मैं महक हूँ जहाँ मैं फैलूंगा, मैं महक हूँ जहाँ मैं फैलूंगा। फायदा क्या हुआ दबाने से, फायदा क्या हुआ दबाने से। और ये देखिए इन रगों में लहू वफा का है। और साहब जरा बाबा बोलिए, मुझ बोलते नहीं है जैसे मैं भी दाद नहीं देता आपको। इन रगों में लहू वफा का है, क्या मिला तुमको आजमाने से, क्या मिला तुमको आजमाने से। इन रगों में लहू वफा का है, क्या मिला तुमको आजमाने से। इसे देखिए बात उसकी न मोतबर होगी, बात उसकी न मोतबर होगी। झूठे इंसान कसम के खाने से, झूठे इंसान कसम के खाने से क्या उजालों में फर्क पड़ता है। साफी साहब ये इशारा देखिए, क्या उजालों में फर्क पड़ता है, क्या उजालों में फर्क पड़ता है, क्या उजालों में फर्क पड़ता है। बज़्म से खमखमों के जाने से, बज़्म में खमखमों के जाने से, बज़्म में खमखमों के जाने से। और ये देखिए चैन राहत सुकून नहीं मिलता। हाँ देखिए क्या उजालों में फर्क पड़ता है, क्या उजालों में फर्क पड़ता है। बज़्म से खमखमों के जाने से चैन राहत सुकून नहीं मिलता, चैन राहत सुकून नहीं मिलता। बाप दादा के उस खजाने से, बाप दादा के उस खजाने से चैन राहत सुकून नहीं मिलता। ऐसी नफरत भी हो गई उनसे, ऐसी नफरत भी हो गई उनसे, ऐसी नफरत भी हो गई उनसे। दिल मिलता नहीं मिलाने से, दिल मिलता नहीं मिलाने से ऐसी नफरत हो गई उनसे। और ये शेर देखिए, दर्द गम और जख्म आंसू भी, दर्द गम और जख्म आंसू भी, दर्द गम और जख्म आंसू भी मिल गए मुझको दिल लगाने से। दिल लगाने से यही तो बात है। दर्द गम और जख्म आंसू भी मिल गए मुझको दिल लगाने से। जब में गई बातें हैं बड़ी खुश हो गए तो मध्यमा बन जाए। ये मरज ही अजीब है फैजी, ये मरज ही अजीब है फैजी। इश्क खुशता नहीं बुझाने से, इश्क खुशता नहीं बुझाने से। दर्द बढ़ता गया छुपाने से, वज़्न हल्का हुआ बताने से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दीवान के सामने दूसरे शायर जनाब खलील अहमद खलील साहब, जो हमारे चेहरे गढ़वा में तशरीफ लाए हैं, बड़ी मुतरन्नम जो है आवाज़ के मालिक हैं खलील खान खलील साहब। उनके एजाज़ में जो है एक दो जो है अशआर जो है पढ़ना चाहता हूँ। आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। नजरें मिलती है जाम मिलते हैं, नजरें मिलती है जाम मिलते हैं। मिल रही है हयात फूलों की। वाह आपके हमारा तो भूल जाते हैं। गजल का अगला अर्थ है
انہیں کو منانے لگے ہم انہیں کو منانے لگے ہم انہیں کو منانے لگے درد دل جو بڑھانے لگے درد دل جو بڑھانے لگے ہم انہیں کو منانے لگے درد دل جو بڑھانے لگے درد دل جو بڑھانے لگے نام میرا ہے دشت سخن نام میرا ہے دشت سخن مجھ کو نادا ڈرانے مجھ کو نادا ڈرانے لگے نام میرا ہے دشت سخن مجھ کو نادا ڈرانے لگے مجھ کو نادا ڈرانے لگے میر غالب کا احسان ہے میر غالب کا احسان ہے ہم غزل جو سنا ہم غزل جو سنانے لگے میر غالب کا احسان ہے ہم غزل جو سنانے لگے ہم غزل جو سنانے لگے در بدر جو بھٹکتے رہے در بدر جو بھٹکتے رہے آخرش وہ ٹھکانے آخرش وہ ٹھکانے لگے یہ شعر لکھے ہیں کیا آپ کی نظر کچھ الگ سے ہو گیا موت کو موت آتی نہیں ہو جائیے آپ موت کو موت آتی نہیں موت کو موت آتی نہیں کیوں قیامت اٹھانے لگے کیوں قیامت اٹھانے لگے موت کو موت آتی نہیں کیوں قیامت اٹھانے لگے کیوں قیامت اٹھانے لگے ہفتے ہو گئے دو بار پڑھنا وہ سبق معتبر تھے خلیل وہ سبق معتبر تھے خلیل نام جن کے مٹانے لگے نام جن کے مٹانے لگے وہ سبق معتبر تھے خلیل نام جن کے مٹانے لگے نام جن کے مٹانے لگے
نیند آتی خلیل اب نہیں، نیند آتی خلیل اب نہیں، خواب ان کے ستانے لگے، خواب ان کے نیند آتی خلیل اب نہیں، خواب ان کے ستانے لگے، خواب ان کے ستانے